Chaliye, let's start, Rajesh. We Yeah. can more people will keep joining as we go along. Hello, good evening, everyone, and welcome to this webinar being hosted by Rajesh Pamar. And Rajesh, as many of you know, is India's one of India's foremost avian naturalists. He's based enviously out of Jim Corbett's ancestral village. Kala Dhungi, and many of you have, I'm sure, interacted with Rajesh over the years, been on trips with him. My first encounter with Rajesh was by chance. I was a novice into birding, and one fine day I read up about this place called Pangot, and an online search told me there's a place called Kafal House, and I promptly called them. There's a guy called Raju who manages the place, and I requested him to find me somebody who can take me around to do birding. It was 14th December 2014. I still remember, and I took a night train from Delhi. I had some work in Delhi. I'm based in Bombay. I was in Delhi. I took a night train, landed up in Satal, and I see Rajesh in his red Maruti Alto driving in. And the next 3-4 days were a lot of fun spent. Birding in and around Pangot and the areas nearby. Rajesh, as many of you know, has been in the tourism business for 2000 from 2006, so that's almost 14 years now. Uh, he has primarily been an avian naturalist from 2012, which makes it almost 8 years. I can't imagine any place in India that he hasn't been to in the last these 8 years. I remember when I met him in 2014, he was still mostly doing birding in areas in Uttarakhand and one-off trips here and there. And in the span of just these 5 years, Rajesh has really covered the length and breadth of the country, and also uh, uh, mapped species which many of us haven't seen. So today's presentation is about that. Some of the species that he's seen. There are only a handful of people in the world who actually seen those species or photographed those species. As you know, he also has a camp called Camp Milieu, which is a little ahead of Haldwani, and he's been running that for many years. I'm told now some of his friends have taken over the place, and they are managing it. One of my most favorable moment with Rajesh was to a place called Munsiari, where by chance on a cold again December morning we encounter a male satyr tragopan, which at that time I was told the first photographic record for Western Himalayas. I still cannot forget that sighting, obviously, and I was told by Rajesh that 3 or 4 weeks back somebody in Munsiari saw 7 males together. So that is something to look forward to once the lockdown is over. Over to you, Rajesh. We are all looking forward to your presentation. Let's Yeah. roll. Good evening, everybody. Thanks, Naval sir. I still remember the trip with you in 2014. Heavy snowfall. Vehicle got stuck there. So I'm keeping medium of this talk as Hindi. I think everybody will be comfortable in Hindi. So जैसे कि नवल सर ने बताया, मेरा टूरिज्म से मैंने जब स्टार्ट किया 2006 से स्टार्ट किया, और वो भी कल्चरल टूरिज्म से. सो बेसिकली कल्चरल टूरिज्म मैंने 2 साल किया. मैं अल्मोड़ा में था उस टाइम पे. उसके बाद मैं कॉर्बेट के गांव में शिफ्ट हो गया, छोटी हल्द्वानी, इन 2008. यहाँ पे ही मैंने उसी एक्सपीरियंस को यूज करके गांव वालों को मोटिवेट किया कुछ होम स्टेज बनाने के लिए, और उन्होंने होम स्टेज को रन किया. बट उस टाइम पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एजुकेशनल टूर्स करना. वो स्कूल स्टूडेंट्स के टूर्स हम लोग करते थे होम स्टेज में. और ये प्रोजेक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि 2010 में मार्गरेट अल्वा गवर्नर थी उत्तराखंड की, वो इस प्रोजेक्ट को विजिट करने आई थी. और इसी प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंसेस को आगे ले जाते हुए मैंने और मेरी वाइफ ने 2012 में कैंप मिलियू करके एक कैंप स्टैब्लिश किया. इसको कैंप को शुरू करने का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एजुकेशनल टूर्स करना और एडवेंचर एक्टिविटी वाले टूर्स करना वहां पे. बट फिर 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई. एक थे कौशिक भट्टाचार्य जो इस पिक्चर में राइट साइड में है, और दूसरे थे सौम्यजीत नंदी, इस ग्रुप में मिडिल में बैठे हुए हैं. ये दोनों पहले से बर्डिंग करते थे. इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस कैंप को, ये बहुत अच्छी जगह है, इसको एज ए बर्डिंग हब डेवलप करो. तो इनिशियली इसका नाम कैंप मिलियू था. बाद में मैंने इसमें एक सफिक्स लगा दिया, अ बर्डिंग पैराडाइज, बिकॉज मेरा भी खुद का इंटरेस्ट डेवलप हुआ बर्डिंग में. मैं पहले से ही नेचर के बीच में रह रहा था, काफी बर्ड्स पहले से देखता रहता था,
और मेरी जो फर्स्ट बर्डिंग ट्रिप थी वो भी कौशिक भट्टाचार्य के साथ ही मैंने की। वो HCL में जॉब करते थे उस टाइम पे, और हम लोगों ने पंगोट और साताल किया। वो जून 2012 में था। और सब लोग जानते हैं जिन्होंने साताल विजिट किया है या पंगोट विजिट किया है, जून और मई का जो मंथ होता है मैक्सिमम एक्टिविटी बर्ड्स की इसी टाइम पे होती है यहाँ पर। सो बेसिकली उस ट्रिप ने पूरा मेरे जो लाइफ थी उसको टर्न कर दिया बर्डिंग की डायरेक्शन में। और जो हमारा लक था, बिगनर्स लक बोलते हैं जिसको, ब्रॉड डे लाइट में 7 ताल में हम लोगों ने उस टाइम पे 5 माउंटेन स्कोप साउल देखे, वो भी एकदम रोड के किनारे, लेक के किनारे। जो जिन लोगों ने 7 ताल विजिट किया होगा उन लोगों को पता होगा, जहाँ से स्टूडियो पॉइंट को रास्ता जाता है एग्जैक्टली उसी ट्री के ऊपर थे। बट उस टाइम पे ना तो वैल्यू पता थी इस बर्ड की और ना ही फोटोग्राफी का कुछ खास आइडिया था, तो ऐसा ही कुछ फोटोग्राफ मुझे मिला उस टाइम पे। और 2-3 साल बाद जाके उसकी वैल्यू रियलाइज हुई, जब मुझे 1-2 जगह से कॉल आए कि आपके पास माउंटेन स्कोप साउल की फोटो है जुवेनाइल की, आप शेयर करो। तो उसके बाद कभी भी डे लाइट में ये बर्ड देखने को नहीं मिली। अभी लोग इसकी फोटो लेने के लिए तरसते हैं जगह जगह। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट गाइडेड टूर था 2012 में मैंने किया, और ये निखिल देवासर जी हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे साथ में एक कपल ऑस्ट्रेलिया से घुमा इस ट्रिप में, डॉक्टर ग्राहम हैरिंगटन एंड जिल हैरिंगटन उनकी वाइफ का नाम था, जो बर्ड ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। और उस टाइम पे उनकी जो लाइफ लिस्ट थी वो आई थिंक 6000 प्लस थी, और मुझे बर्डिंग का कुछ खास आइडिया नहीं था। बट वहां भी मेरा जो बिगनर लक था वो काम कर रहा था। और उस ट्रिप में हम लोगों को 7 इंडिविजुअल्स ग्रे क्राउन प्रीनिया के मिले, 7 ताल के स्टूडियो के पास में। ग्रे क्राउन प्रीनिया जो कि वेस्टर्न हिमालय के एंडेमिक है, मुझे उस टाइम पे उसकी भी वैल्यू नहीं पता थी। इनफैक्ट डॉक्टर ग्राहम हैरिंगटन ने ही मुझे रियलाइज कराया कि ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए देखना। वो लाइफर थी मेरी। उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू रही। फिर हम लोगों ने एक रैकेट ट्रिप की, इसमें भी कौशिक भट्टाचार्य, सौम्यजीत नंदी और कुछ और फ्रेंड्स थे। हम लोग चोपता गए जून 2013 में। और जिस रात केदारनाथ की कैलेमिटी हुई तो उस रात हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। इनफैक्ट हमने अपना सामान बेड के ऊपर रखा है, जिस टेंट में हम रुके हुए थे उसमें पानी घुस गया था, इतनी ज्यादा बारिश हुई। नेक्स्ट डे हम लोग वहां से आ गए। उसके बाद उत्तराखंड के बाहर जाने की हिम्मत जुटाई तो 2013 अक्टूबर में फर्स्ट ट्रिप मैंने ताल छापर की। उसमें भी अगेन एक फेस कॉमन था, कौशिक भट्टाचार्य। वही हर जगह मुझे मोटिवेट कर रहा था कि ये ट्रिप करेंगे, वो ट्रिप करेंगे। और कुछ नए चेहरे उस ट्रिप में जुड़े, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, बीच में शविता कुलकर्णी मैम है दिल्ली से, और उनका बेटा है मानस कुलकर्णी, जो 2013 से लेके अभी तक कंटिन्यूस मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोकेशंस पे बहुत जगह मेरे साथ जा चुके हैं। उनके साथ एक फैमिली टर्म्स बन गए हैं। ऐसे ही काफी लोग जुड़ते चले गए। फिर 2014 में एक और इवेंट हुई, रेड ब्रेस्टेड गूज की साइटिंग। ये मुझे और मेरी वाइफ को बिजनौर के पास में गंगा बैराज एक जगह है जो अभी हैदरपुर वेटलैंड के रूप में डेवलप हो गया है। सो वहां पे बेसिकली ये रेड ब्रेस्टेड गूज की साइटिंग हुई थी और ये बाय चांस दिखी हम लोगों को। हम लोग ये बार हेडेड गीज देख रहे थे वहां पे, काफी सारी बार हेडेड गीज थी। अचानक मेरी वाइफ शीला की नजर पड़ी कि एक बर्ड डिफरेंट लग रही है बीच में। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि कोई कॉमन बर्ड होगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा बर्ड्स देखी नहीं थी तब तक। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ही कुछ होगा। उसने मुझे इंसिस्ट किया कि पास जाके अच्छा फोटो लो, क्योंकि वो बाइनॉक से देख रही थी और मेरे पास कैमरा था और 70-300 mm लेंस था, मैनुअल फोकस वाला। सो उसको बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे थे बाइनॉक से। उसने मुझसे बोला कि आप जूते उतारो, कीचड़ के बीच से जाओ, अच्छी फोटो लेके आओ। मैंने कहा नहीं, ये कोई कॉमन बर्ड है, मैं अच्छी अच्छी फोटो के लिए पास नहीं जाने वाला हूँ, कीचड़ में नहीं घुसने वाला हूँ। और मैंने खाली रिकॉर्ड शॉट लिया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रिकॉर्ड शॉट था उस टाइम पे। और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि इसको सर्च तो करूँ कि बुक में बर्ड थी क्या वो, 1 या 2 दिन के बाद ही। तो देखा तो बुक में ये बर्ड ही नहीं थी, एग्रीमेंट वाली बुक में इस बर्ड की कोई ऐसी फोटो ही नहीं थी। तो उसके बाद वो सौम्यजीत नंदी मेरे टच में था, तो मैंने उसको ईमेल किया। उसने कुछ रिसर्च किया गूगल पे, उसके बाद पता चला कि ये रेड ब्रेस्टेड गूज है और इंडिया की फर्स्ट कंफर्म्ड रिकॉर्ड है। पहले 2-1 रिकॉर्ड्स कहीं पे मेंशन थे बट वो कंफर्म नहीं थे। सो ये फर्स्ट कंफर्म फोटोग्राफिक रिकॉर्ड था इंडिया से, रेड ब्रेस्टेड गूज। उसके बाद आर्टिकल पब्लिश हुआ इंडियन बर्ड्स में। फिर धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हो गई हम लोगों की अपने बर्डिंग नेटवर्क में, और इससे भी हमें आगे जाने की डायरेक्शन मिली। तो फिर मैंने 2015 में श्रीलंका का ट्रिप किया। मुझे लगा कि बाहर का भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने सुना था कि एंडेमिक्स अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका में काफी ज्यादा है, 34 छोटे से कंट्री में। तो मैंने श्रीलंका का ट्रिप किया। इसमें इस फोटो में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सुदेशना डे है। सो सुदेशना भी शुरुआत के दिन से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है 2014 से, और अभी तक भी ये ट्रिप करती है। अभी जून में भी हमारी लद्दाख की ट्रिप प्लान थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगी कोविड की वजह से शायद। सो श्रीलंका ट्रिप प्लान किया, वो बहुत सक्सेसफुल ट्रिप रहा हमारा। उसके बाद
2015 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअस इतने ट्रिप किए, फिर तो हर साल हर महीने, इनफैक्ट जो मेरे पास लोगों की क्वेरीज आती हैं मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ अभी भी। तो अभी तक मेरी जो लाइव लिस्ट है वो 1117 बर्ड्स मैं देख चुका हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें भूटान और श्रीलंका इंक्लूड है, और इंडिया में इटसेल्फ 1063 बर्ड्स मैंने अभी तक देखी हैं। इनमें फोटोग्राफी और स्पॉटिंग दोनों इंक्लूड हैं। अभी तक 20 स्टेट्स में मैंने बर्डिंग की है, और इन सारे स्टेट्स में मेरा जो फेवरेट बर्डिंग स्पॉट है वो मानस टाइगर रिजर्व है, हैबिटेट के हिसाब से और जो वहाँ पे बर्ड्स हैं उसके हिसाब से भी। और मैंने जितने 20 स्टेट्स में बर्डिंग की है, फर्स्ट मेरा हाईएस्ट नंबर उत्तराखंड में है 596, उसके बाद आसाम ही है जहाँ पे मैंने मैक्सिमम बर्ड्स देखे हैं 471। और मेरी फेवरेट बर्ड ग्रेट स्लेटी वुडपेकर है। जिन लोगों ने इस वुडपेकर को देखा होगा वो समझ सकते हैं कि इसमें मतलब अलग दिखने वाली बर्ड है जो लगता है कि कहीं बाहर की दुनिया से आई है। और मेरा फेवरेट जो फोटोग्राफिक प्लेस है वो भूटान है। भूटान में फोटोग्राफी इजी है, बर्ड्स इजीली कैमरे के सामने आती हैं, तो भूटान इज माय फेवरेट प्लेस। उसके बाद कैंप बिलियो हमने 2018 में क्लोज कर दिया था, और उसके बाद एवियन ट्रेल्स नाम से अपनी एक फर्म बनाई मैंने और मेरी वाइफ ने। तो हम लोग अभी एवियन ट्रेल्स के नाम से अपने टूर्स करते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन का जो मेन पार्ट है हम उस पर आते हैं, चेजिंग रेयर बर्ड्स। सो बेसिकली कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो आई थिंक 3 या 4 लोगों ने ही वर्ल्ड में देखा है उस बर्ड को या फोटोग्राफ किया है। तो उसी बर्ड का हमने टाइटल रखा था इस प्रेजेंटेशन का, स्क्लेटस मोनाल। सो बेसिकली ये सीक्वेंस रहेगा हमारे आज के प्रेजेंटेशन का। जो बर्ड्स मैं दिखाऊंगा, इसमें फर्स्ट हिमालयन स्नोकॉक, देन स्क्लेटस मोनाल। इसकी 2 सब स्पीसीज है, वन इज स्क्लेटरी सब स्पीसीज, द अदर वन इज अरुणाचलेंसिस। स्क्लेटरी हम फर्स्ट कवर करेंगे, देन ओरिएंटल बे आउल, हिमालयन मोनाल ऑन स्नो, जो सभी किसी भी बर्ड फोटोग्राफर का ड्रीम होता है कि स्नो कारपेट के ऊपर हिमालयन मोनाल खींचना, मेल। देन चीर फेजेंट के पेयर, मेल एंड फीमेल। देन कॉमन रॉक थ्रश और रिफस टेल्ड रॉक थ्रश। देन विल कवर यूरेशियन ईगल आउल, देन पेल रोज फिंच, नॉर्दर्न विटियर, व्हाइट ब्राउड टिट वॉबलर, टिबेटन पार्ट्रिज, ग्रैंडाला, स्लेंडर बिल्ड ओरियोल, पाइड विटियर, माउंटेन टेलर बर्ड, ग्रे क्राउन प्रीनिया, एंड देन at last I'll cover that Scletus monal Arunachellensis subspecies. So शुरुआत करते हैं हिमालयन स्नोकॉक से, जिसके लिए बहुत एफर्ट की थी हम लोगों ने। तो उत्तराखंड में ये अपना लाइफर करना था, इसलिए एफर्ट की थी। उसके बाद तो बहुत बार अलग अलग लोकेशंस पे भी देखा, मतलब लद्दाख में सबसे इजी है। तो मुनस्यारी में खलिया टॉप एक जगह है, जिन लोगों ने मुनस्यारी विजिट किया है या उत्तराखंड विजिट किया है उनको पता होगा। इसके लिए बेसिकली ट्रैक करना पड़ता है। तो हम लोगों ने 1 जनवरी 2016 का फर्स्ट डे था जिस दिन ये ट्रैक किया, और स्नो थी वहां पे, और 18 किलोमीटर्स का ट्रैक हम लोगों ने किया ये स्नोकॉक को देखने के लिए। इससे पहले क्या था कि हम लोग चाह रहे थे कि 31 जनवरी को ही इसको देखें, बट वहां पर एक लॉज है ऊपर, एक अकेले गेस्ट हाउस है खलिया टॉप में, जिसमें अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी, और नीचे आना पॉसिबल नहीं था सेम डे ये ट्रैक करने के बाद। सो बेसिकली रोड से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गेस्ट हाउस है, और उसके फर्दर 6 किलोमीटर्स हम लोगों को जाना था इस स्पॉट पे जहाँ पे ये हिमालयन स्नोकॉक दिखते हैं। सो हमने फिर डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे। उससे पहले 2 बर्ड वॉचर्स ऑलरेडी वहां पर थे, पूजा शर्मा एंड गुंजन अरोड़ा दिल्ली से। उन लोगों ने 31 जनवरी को ही कुछ इंडिविजुअल्स देखे थे, और कुछ 1 जनवरी को भी देखे। उन लोगों ने टोटल 34 इंडिविजुअल्स स्नोकॉक के वहां पे देखे। जब हम लोग पहुंचे तब तक कुछ इंडिविजुअल्स इधर उधर चले गए थे, बट 18 हमने भी देखे। जो ट्रैक की कंडीशन थी वो आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो इस तरीके से स्नो था। ये तो स्लोप पे था 5 किलोमीटर जाने के बाद, टॉप पे पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर डाउन हिल स्लोप था, तो उस पर हम लोग वॉक कर रहे हैं, तब ये वीडियो बनाया था। और काफी टफ था। आते आते हमको वापस शाम हो गई थी गेस्ट हाउस आते आते, तो स्किट कर करके स्नो के ऊपर हम लोग आए, और पीछे पंचाचूली भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बट वो बहुत मेमोरेबल साइटिंग थी। वहां पर जो फोटोज मिले, फोटोज बहुत अच्छे नहीं मिले, क्योंकि बहुत शाई बर्ड है, पता नहीं था ट्रैक करने का कि कैसे ट्रैकिंग करें इसको, कि कैसे अच्छे से बर्ड फोटोग्राफ कर सकें। तो इस तरीके का एक फोटो वहां पे मिला, एक पेड़ का बैठे हुए। उसके बाद उसी साल 2016 में 31 दिसंबर को साल की शुरुआत मैंने इसी बर्ड से की, और एंड भी इसी बर्ड से किया। ये लद्दाख का फोटो है। लद्दाख में वारीला पास पे ये फिर से हमें हिमालयन स्नोकॉक दिखा, और मैं और शीला हम दोनों ही साथ थे, और हमारे साथ एक दूसरा ग्रुप था। सो 2016 बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए पूरा साल, और शुरुआत भी स्नोकॉक से हुई और एंड भी स्नोकॉक के साथ ही हुआ। ये उस गेस्ट हाउस का फोटो है। मतलब वहां पे स्नोकॉक ना भी दिखे तो गेस्ट हाउस में रहना ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है।
पंचाचूली एकदम आपके आई लेवल पे होता है। इवनिंग टाइम में हम लोग वहाँ पे कैंप फायर कर रहे थे वापस आने के बाद। इंडिया के मैप में अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये मुनस्यारी जो है बॉर्डर एरिया है, नेपाल और तिब्बत के साथ में बॉर्डर्स लगते हैं इसके। तो बेसिकली इस जगह पे हमने ये स्नोकॉक की साइटिंग हुई हम लोगों को। नाउ सेकंड स्पीसीज इज स्क्लेटर्स मोनाल। ये भी मेरे शुरुआती टूर्स में था 2016 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ये टूर। तो इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे पहले से, वो लोग इस टूर में आए थे मेरे साथ में। मायोडिया पास के बारे में काफी कुछ पहले से सुना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत अच्छा नहीं है। मायोडिया कॉफी हाउस जो लोग विजिट किया होगा जिन लोगों ने, तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। जैसे ही हम शाम को वहाँ पहुंचे तो एक पार्टिसिपेंट रूम में अंदर जाते ही वापस आ गई, लेडी थी वो। उसने बोला मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ये अकोमोडेशन में रुकना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बारिश हो रही थी, पूरा डैम्प था एरिया। तो मैंने बोला कि ठीक है आज की रात कैसे भी एडजस्ट करते हैं, कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, खाली एक सेशन करके मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मायोडिया पास गए, तो वहां पे एक टर्न पे अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों को स्क्लेटर्स मोनाल की फीमेल दिखी। सो बेसिकली क्या था, यू टर्न था वो, और एक साइड में हमारी गाड़ी और ड्राइवर्स खड़े हुए थे, और उसके यू टर्न के दूसरी तरफ हम लोग थे, हमारा ग्रुप था। हम लोगों को फीमेल क्लियर दिख रही थी, हम लोग उसकी फोटोग्राफी कर रहे थे। इधर से हमारा एक ड्राइवर था जो बार बार कुछ इशारा कर रहा था हम लोगों को। बिनंदा मेरे साथ में लोकल गाइड था वहां पे, जिन लोगों ने उधर अरुणाचल या आसाम किया होगा, बिनंदा को अच्छे से जानते होंगे। सो बिनंदा बार बार ड्राइवर को बोल रहा है कि चुप रहे, वही पता है, नहीं आने की जरूरत नहीं है पास में। बट वो ड्राइवर फिर भी इशारा कर रहा था, हम लोग नहीं समझ पाए। जैसे ही फीमेल वहां से चली गई, हम लोग वापस आए, ड्राइवर दौड़ के हमारे पास इनफैक्ट वापस आया। उसने पूछा कि आप लोग फोटो दिखाइए, क्या खींचा। हमने उसको फोटो दिखाया। सो बेसिकली वो फोटो जो था ये ब्राउन कलर का था। उसने बोला अरे वो ब्लू कलर वाला नहीं देखा आपने। तो बेसिकली क्या था, वो जो यू टर्न था, यू टर्न के एक साइड में हम लोग थे, हमें इधर का व्यू दिख रहा था, उसको दूसरी साइड से दूसरी तरफ का व्यू दिख रहा था। तो वो मेल को देख रहा था और हम खाली फीमेल को देख रहे थे। तो हमें फीमेल की फोटो मिली। फिर हमने काफी सर्च किया, मेल नहीं मिला। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा ऐसा है, अब मेल तो कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। तो आज की रात और रुक जाते हैं कॉफी हाउस में, तो ट्राई करेंगे, शाम तक मिल गया तो शाम को भी जा सकते हैं, अदरवाइज अगले दिन ही जाएंगे। तो एक रात और रुकने का सबने डिसाइड किया। एक ग्रुप और वहां पे रुका हुआ था कॉफी हाउस में। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, बिनंदा ने उनको ये फोटो दिखा दिया। उन लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जाना था, बट उन्होंने भी डिसाइड किया कि सुबह हमने भी ट्राई करना है इसके लिए। बिनंदा ने वापस आके मुझे बताया कि मैंने उनको भी बताया है, वो लोग भी आएंगे। मैंने कहा इतने लोग आएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे जो एक बिहेवियर में आ जाता है बर्डर के या बर्ड गाइड के, कि अपने ग्रुप को पहले दिखना चाहिए, दूसरे को नहीं दिखना चाहिए। तो वैसा ही कुछ मैंने ही प्लान किया कि हम लोग पहले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें ही दिखे अगर मेल मिलना है तो हम लोग पहले गए वहां पे। और एग्जैक्टली हम इस लोकेशन पे खड़े नहीं हुए, क्योंकि दूसरे ग्रुप को हम नहीं चाहते कि वो देखे। हम उस लोकेशन से 1 किलोमीटर फर्दर डाउन जाके एक दूसरे बैंड पे रुक गए। तो वहां पे लक था उन लोगों का भी और हमारा भी। जैसे ही वो ग्रुप पीछे से आया तो बिनंदा ऐसे ही स्कैन करने लगा हिल के ऊपर, कि कुछ ऐसे ही देखता रहता हूँ ताकि इन लोगों को लगे कि हमें यहीं पे साइटिंग हुई थी इस मोनाल की। मैंने भी स्कैन किया, अचानक बिनंदा की नजर पड़ी तो मेल दिखा। ये फोटोग्राफ था। बहुत अच्छे फोटोज नहीं मिले थे क्योंकि थोड़ा दूर था, बट ऑब्वियसली स्क्लेटर्स मोनाल का मेल हम लोग देख रहे थे, तो सब खुशी के मारे पागल हो गए इसको देखने के बाद। काफी अच्छी साइटिंग थी और काफी इसने टाइम दिया। तब उतना ज्यादा नहीं पता था इस बर्ड की वैल्यू, वो भी आने वाले एक साल बाद जब लोगों से डिस्कस होता रहा इसके बारे में, सब लोगों ने फोटोज देखे, ये वीडियो भी मिला मुझे वहां पे, तब पता चला कि हाँ स्क्लेटर्स मोनाल वाकई ही स्पेशल है। तो कितने काफी लोगों ने देखा था उस टाइम तक स्लेटर्स? हाँ मतलब नवंबर का मंथ जो होता है इसके लिए बेस्ट बोलते हैं इसकी साइटिंग के लिए। सो नवंबर में ही हम लोगों को भी दिखा बेसिकली। बहुत लोगों ने अभी तक भी जो भी फोटोग्राफ्स हैं ओरिएंटल बर्ड इमेजेस पे देखेंगे या कहीं भी, सबकी मैक्सिमम साइटिंग्स जो है नवंबर मंथ की हैं। और लकीली उस दिन जैनी भी मुझसे मिली वहां पे, वो भी अनिनी में इसको भी ट्राई करने गई थी, उसको भी बाय चांस फीमेल्स मिली, मेल नहीं मिला था स्क्लेटस मोनाल का। सो मेल मतलब कम लोगों ने ही देखा है, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। और ये स्क्लेटरी सब स्पीसीज था। ये बेसिकली लोकेशन है मायोडिया पास की, अगर इंडिया के मैप में देखें तो। ये लक्की ग्रुप था जिसने ये सब देखा। और ये सेंटर में स्लेटर्स जो मोनाल कितनी बार देखा हुआ है राजेश? नहीं, मैंने मायोडिया पास पे खाली 2 बार देखा है, जो स्क्लेटरी सब स्पीसीज है। और जो अरुणाचलेंसिस सब स्पीसीज है वो तो खाली एक ही बार देखा है, और वो एक मेल देखा था वो भी उसका। वो मैं लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो शायद 3 लोगों का ग्रुप था हमारा और एक गाइड था हमारे साथ में। हम 4 लोगों के पास उसके फोटोज हैं,
रिकॉर्ड सोर्स हैं या जैसे ही फोटोज हैं। और उसके अलावा आई थिंक 1 या 2 लोगों के पास हार्डली होंगे जिन्होंने उसको 2009 में देखा था। तो उसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन हम लोगों को ये मेल मोनाल दिखा, उस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया में आधी रात को। तो हम लोग रुकना चाह रहे थे सभी लोग वहां पे, क्योंकि सबको इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिल सकता है। बट तभी जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर थे उनका फोन आया कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है और पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, डीजल नहीं मिलेगा आपको, तो आप अच्छा ही होगा कि अरुणाचल से आप आसाम में आ जाए। तो हम लोगों को इमीडिएटली वहां से निकलना पड़ा और उसके बाद हम लोग डिगबोई आ गए। डिगबोई में हमने सोचा कि फिर देंग पटकई जो जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोराई एरिया उसका, वहां पे हमने बर्डिंग की। और वहां पे दूसरा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ ओरिएंटल बे आउल को लेके। तो दिन में हम लोग सेंचुरी के अंदर गए तो वहां पे एक वाटर बॉडी है जिसमें यूजुअली लोग जाते हैं व्हाइट विंग्ड वुड डक देखने के लिए। हम लोग भी वहां पर गए। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो सामने एक चौकी थी, वहां पे सीआरपीएफ शायद रहती है वहां पे। तो वहां से हमें आवाज लगाई किसी ने, सीआरपीएफ वाले ने, कि आप हाथ ऊपर करो सब लोग। सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, खड़े हो गए। तो उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसा है, यहाँ पे इस तरफ इवनिंग में मत आना इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने पे गोली मारने के ऑर्डर है। तो हम लोग वहां से वापस आ गए। शाम को सबका प्लान था कि ओरिएंटल बे आउल की साइटिंग के लिए जाएंगे। तो बेसिकली जहाँ पे वो लेक थी उसके अपोजिट साइड में एक रास्ता था वो, जहाँ पर ओरिएंटल बे आउल की साइटिंग होती है। तो हम लोगों को कॉल सुनाई दी अंदर से फॉरेस्ट के। हम लोग कॉल फॉलो करते करते, 4 लोग थे हम, बिनंदा ही साथ में था, फॉरेस्ट के अंदर चले गए। थोड़ा अंदर जाने में मैंने बिनंदा से पूछा कि वापस आने का रास्ता पता है? उसने बोला हाँ, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पे और हम वापस आ जाएंगे। तो अंदर घुसते घुसते करीब आधा किलोमीटर अंदर चले गए फॉरेस्ट के अंदर रात में। उसके बाद वहां पे एलिफेंट की कॉल सुनाई देगी सामने से, कुछ पेड़ वेड़ टूटने की आवाज आई। बिनंदा ने बोला कि बाहर निकलना पड़ेगा, एलिफेंट है सामने। हम लोगों ने 2 राउंड लगाए वहां पे, दोनों बार घूम के एक नाले के पास आके खड़े हो जाते थे हम लोग। रोड रास्ता ही नहीं मिल रहा था अंधेरे में कि कहाँ जाना है। फोन कनेक्शन चेक किया तो फोन में नेटवर्क नहीं था कि ड्राइवर को कॉल करें, उसको बोले कि हॉर्न बजाए। हम लोग थोड़ी देर घूमते रहे। उसके बाद सामने एक ऐसी चौड़ा पाथवे जैसा दिखाई दिया जो एलिफेंट का बेसिकली रास्ता था। तो मैंने सबको बोला कि अब एक ही ऑप्शन है कि इसी रास्ते पे चलें। तो सबके अंदर मनी मन में ये लग रहा था कि अगर ये रास्ता वहां पे सीआरपीएफ कैंप के पास निकला तो वो गोली मार देंगे, और हाथी का रास्ता है, सामने से हाथी आ गया तो क्या होगा। तो मैंने बोला कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा तभी एग्जिट कर पाएंगे यहाँ से। तो हम लोग वहां से उस रास्ते से निकले। हार्डली 300 मीटर्स जाने के बाद हम लोग बाहर आ गए। तो हमें कोई फोटोग्राफ नहीं मिला। साइटिंग बहुत अच्छी हुई आउल की। हम लोग वापस आ गए। उस साल फोटोग्राफ नहीं मिला। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से देंग पटकाई का टूर ऑर्गेनाइज किया। बिनंदा ही फिर से साथ में था। 2017 नवंबर में फिर इसका फोटोग्राफ मिला जाके, ओरिएंटल बे आउल का। सो जिन लोगों ने इसकी फोटोग्राफी की उनको ही पता हुआ है कितना टफ है इसको फोटोग्राफ करना, और बहुत ज्यादा लोगों के पास में इसके फोटोज नहीं है ओरिएंटल बे आउल के। और वही एक मेरे ख्याल से इंडिया में एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे ये मिलता है। ये ग्रुप था जिन्होंने फोटोग्राफ किया था 2017 में मेरे साथ, हरीश थंगराज, सुमा रॉय। तो अब बात करते हैं हिमालयन मोनाल ऑन स्नो। सो ये पूरा स्नो कारपेट के ऊपर मोनाल मिला था मुनस्यारी में मार्च मंथ में 2017। तो 2 दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था और हम लोग वहीं पे रुके हुए थे। तो मेरा जो ग्रुप था, विराग शर्मा मेरे साथ में थे, डॉक्टर मनोहर वेल्यूरी साथ में थे। सो हम लोग मॉर्निंग में जैसे ही बर्डिंग करने आए, इस पूरी कारपेट के ऊपर ये मोनाल चलते हुए मिला हमें। ये पोस्ट काफी कंट्रोवर्शियल भी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। जब मैंने ये पोस्ट डाली तो लोगों ने बोला कि ये तो फोटोशॉप किया हुआ है, ऐसा स्नो और ये दोनों को ऐसे कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, और ये वो सब लोगों ने बोला। तो लकीली मैंने इसका वीडियो भी शूट किया था, तो फिर ये वीडियो पोस्ट किया। तब जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ ऑब्वियसली ये फेक फोटो नहीं थी। तो इसको दिखाने का पर्पज यही था कि ये भी हर एक बर्डर का ड्रीम होता है कि व्हाइट स्नो के ऊपर इतना कलरफुल मेल मोनाल मिले। तो ये फोटो लकीली मेरे पास है इस तरीके से। मुनस्यारी में ही जो वहां का दूसरा अट्रैक्शन है वो है चीर फेजेंट। और चीर फेजेंट का वैसे तो साइटिंग डिफिकल्ट हो गई है आजकल के दिनों में, पिछले 4-5 सालों से। पहले लोग पंगोट में चीर फेजेंट देखने के लिए जाते थे, बट अभी वहां पे हैबिटेट डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा साइटिंग्स कम हो गई हैं। तो मुनस्यारी एक दूसरा हॉट स्पॉट है इसके लिए, और ये भी वेस्टर्न हिमालय के एंडेमिक है, तो लोगों को इधर ही आना पड़ता है इसको देखने के लिए। और इस तरीके का फोटो मिलना बहुत बड़ा लक है कि मेल फीमेल साथ बैठ के एक पत्थर के ऊपर बैठे हों और ऐसा फोटो मिले। और यही ग्रुप था मेरा जिन्होंने हिमालयन मोनाल स्नो के ऊपर खींचा। और इन्हीं लोगों ने ये चीर प्रेजेंट भी एक ही रॉक के ऊपर मेल एंड फीमेल
इसमें लेफ्ट साइड में मेल है जिसकी टेल थोड़ा जो बैंड है टेल के ऊपर ब्लैक ब्रॉड बैंड्स हैं। आई थिंक नवल सर हम लोगों ने भी इसी रॉक के ऊपर जो अपना दिसंबर 2016, हाँ, तो वो साइटिंग हमें ट्रैगोपैन की साइटिंग भी इनफैक्ट इसी प्लेस पे हुई थी जहाँ पे ये चीड फेजेंट दिखा था। इसका भी मैंने वीडियो शूट किया था, तो चीड फेजेंट भी कॉल कर रहे थे दोनों, और कैमरे की भी आवाज है, शटर भी चल रहे थे साथ साथ फोटोग्राफ के लिए। ये बेसिकली एक लैंडस्केप है मुंशियारी एरिया से, तो इस तरीके का व्यू है। अगर आपको बर्ड्स नहीं भी दिखती हैं तो डिसअपॉइंट नहीं होते हैं लोग वहां जाने के बाद, क्योंकि पंचाचूली पीक्स का इतना बढ़िया व्यू रहता है वहां पे दिन भर, और हर एक एंगल से आपको ये व्यू मिलेगा, स्पेशली इन विंटर्स। अगर आप मार्च अप्रैल तक जाते हैं, मई जून में थोड़ा हेज की वजह से इतना अच्छा व्यू नहीं होता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इंडिया से, ये है कॉमन रॉक थ्रश, जो बेसिकली पैसेज माइग्रेंट है इंडिया में। इसकी भी फोटोज बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, और ये बहुत कलरफुल बर्ड है जो फोटोग्राफी के हिसाब से बहुत अच्छी भी लगती है। मेरा लक था कि मुझे ये बर्ड राजस्थान में ही मिला, ताल छापर में मैंने देखा। जो लेफ्ट साइड का फोटो है वो ताल छापर में खींचा हुआ है मैंने अक्टूबर के मंथ में, और जो राइट साइड का फोटो है वो लद्दाख से है, ये सितंबर में खींचा है। सो बेसिकली क्या है कि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से लद्दाख में जो पैसेज माइग्रेशन होता है वो थोड़ा जल्दी होता है, अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक में, और इधर राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ये बर्ड्स अक्टूबर तक पहुंचती है। सो ये दोनों फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे शेयर करना समझा कि आप लोग देख के अच्छा लगेगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग, यूरेशियन ईगल आउल। सो यूरेशियन ईगल आउल बेसिकली जो इंडिया में लोग देखते हैं वो हनले से देखते हैं, और वो ग्रे मॉफ इसका होता है, ये ब्राउन मॉफ है इसका, और ये हम लोगों को नुब्रा वैली में मिला लद्दाख में अगस्त 2018 में। ये बेसिकली इतने पास बैठा हुआ था ये आउल इस रॉक के ऊपर, हम लोगों ने अप्रोच किया तो ये भागा ही नहीं वहां से, और इतने अच्छे क्लोजअप्स इसके मिले। इसका मैंने एक वीडियो भी शूट किया है, तो ये आप देखेंगे। ये 200-500 से हैंडहेल्ड वीडियो है, तो ये 200 जूम में है, इतना पास था ये बर्ड। इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इंडिया के लिए, खाली लद्दाख में ही मोस्टली लोग इसको देखते हैं इंडिया में। लद्दाख से एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग हुई जो इंडिया के लिए नया रिकॉर्ड था, पेल रोज फिंच। तो ये राहुल शर्मा और खुशबू शर्मा बर्डर हैं सातान से, उन लोगों ने पहली बार रिपोर्ट किया था इसको नुब्रा वैली से, लद्दाख से। जब मैंने नेक्स्ट ईयर टूर किया तो मेरे दिमाग में ये बर्ड प्रायोरिटी पे थी कि 2018 में बेसिकली इसकी फर्स्ट साइटिंग हुई थी, तो 19 में टारगेट यही था नुब्रा जाने का कि पेल रोज फिंच दिखनी चाहिए। और लक अच्छा था, तो क्या हुआ कि जब हम लोग लेह में रुके हुए थे तो शशांक दलवी से वहां मुलाकात हुई, और शशांक ने थोड़ा आइडिया दिया इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कहाँ पर मिल सकती है और किस तरीके के हैबिटेट में ये मिल सकती है। तो हम लोगों ने ट्राई किया। इनफैक्ट उससे पहले मैं देख चुका था, हाँ ये तो सेकंड ग्रुप की बात है, जब मेरा सेकंड ग्रुप आया था। पहले ग्रुप की साइटिंग है ये मेरे जून में। तो हम लोग नुब्रा में रुके हुए थे, हुंदर में। हुंदर से तुर्तुक वाले रोड पे ये साइटिंग हुई इस बर्ड की हमें, और ये भी लक था हमारा कि हमने गाड़ी साइड की, आर्मी का एक ट्रक आ रहा था और हमने उसको पास देने के लिए साइड में गाड़ी लगाई, तो अचानक जो मेरे टूर की पार्टिसिपेंट्स थी, 3 लेडीज थी उस टूर में मेरे साथ में, नीतू शेट्टी दिल्ली से, चौला पटेल और कुशल सोधन अहमदाबाद से। तो चौला मैडम की इस पे नजर पड़ी कि 2 बर्ड उड़ के ऊपर को आई हैं। मैंने बाइनोक से देखा तो मुझे ये मेल दिखा, तो मैंने एकदम से कंफर्म किया कि ये पेल रोज फिंच है और कोई बर्ड होगी नहीं ऐसी यहाँ पे। सो फिर हम लोगों ने इसको फॉलो किया, तो कुछ फोटोग्राफ्स मिले, बहुत अच्छे शॉट्स नहीं मिले, मेल का ये मिला और ये फीमेल का फोटो मिला। बट ये था कि इस बर्ड को देखना ही कि लास्ट ईयर इंडिया में रिपोर्ट हुई है, अगले साल हम लोगों को साइटिंग हो गई, तो एक अलग ही फीलिंग थी सबके अंदर। ये बेसिकली जगह है नुब्रा वैली में, जो बॉर्डर एरिया है उसके बाद ही तुर्तुक विलेज आता है, कुछ किलोमीटर्स के बाद ही, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। और ये ग्रुप था मेरा जिनको ये साइटिंग हुई। ये फोटो तो पेंगोंग का है, बट ये जो साइटिंग हुई थी हम लोगों को नुब्रा वैली में हुई थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बर्ड है लद्दाख से ही, नॉर्दर्न विटियर। ये इसकी भी बहुत ज्यादा साइटिंग्स नहीं है, थोड़ा रेयर है बर्ड ये भी।
और ये भी लकीली हम लोगों को लद्दाख में हनले में दिखी, इसी ग्रुप के साथ में जिनको पेल रोजफिंच भी दिखी थी। और ये भी नॉर्दर्न विटियर भी ऐसे ही हम लोगों को मिली, और हम लोग ट्राई कर रहे थे इसको, बट बर्ड दिख नहीं रही थी। अचानक जो मेरा ड्राइवर था वहां पे, टैक्सी ड्राइवर, उसकी नजर पड़ी कि उसको एक रॉक के ऊपर एक बर्ड दिखी बैठे हुए ग्रे कलर की। उसने बोला सर ये कहीं ये वाली बर्ड तो नहीं है? तो मैंने बाइनॉक से देखा तो इमिडिएटली ये पहचान में आ गई कि ये नॉर्दर्न विटियर है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स इसके भी मिले हम लोगों को। और उस 2019 में मेरे 3 ग्रुप थे, तीनों ग्रुप ने लकीली देखी बर्ड वहां पे। ये हनले की लोकेशन है लद्दाख में। जो लोग लद्दाख जिन्होंने विजिट किया है वो जानते भी होंगे कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये। उसके बाद लद्दाख से एक और इम्पोर्टेंट बर्ड है व्हाइट ब्राउड टिट वॉबलर। तो इसके लिए भी काफी स्ट्रगल किया, पहले साल ढूंढा नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर गए हम लोग, तो 2014 में मैंने पहली ट्रिप की थी लद्दाख की। तब तो आइडिया नहीं था इस बर्ड का। फिर इधर उधर डिस्कशंस में देखा कि लोग बात करते हैं व्हाइट ब्राउड टिट वॉबलर वहां मिलता है, नुब्रा वैली में मिलता है, बेसिकली लोग बोलते थे। नुब्रा में मैंने काफी ट्राई किया, नहीं मिला मुझे समर सीजन में। फिर विंटर्स में एक ट्रिप मैंने लद्दाख का किया था, जिसमें नितिन घोरपड़े मुंबई से, विनोद वेणुगोपाल बेंगलोर से, और कामाक्षी करके एक लेडी थी। हम 3 लोग गए थे बेसिकली। और युले जो उले गांव है लद्दाख में, लेह के पास, उले में बेसिकली लोग जाते हैं इसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। तो हम लोग वहां पे रुके हुए थे उले में। और वहां पे जो होम स्टे वाले थे उन लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पे टिट वॉबलर आता है बुशिस में। तो नाम सुन के ही एकदम से कि अरे ये तो स्नो लेपर्ड दिखे ना दिखे, टिट वॉबलर दिख जाए काफी है हमारे लिए। तो हम लोगों ने एक नाले में जाके काफी सर्च किया, जहाँ पे लोकेशन बताई थी गांव वालों ने कि वहां पे दिखता है। पहले दिन दिखी हमें बर्ड, बट कोई फोटो नहीं मिला, बर्ड फ्लाई कर गई। अगले दिन जब हम उले से वापस आ रहे थे तो एक स्ट्रीम थी उले के पास में ही, उस स्ट्रीम में एक बड़ा फ्लॉक दिखा हमें इन बर्ड्स का। तो तब इसका फोटोग्राफ मिला। ये फर्स्ट फोटोग्राफ था मेरा मेल का वहां से। और इसका फोटो लेने के बाद मतलब बाकी थकान ट्रिप की, स्नो लेपर्ड की साइटिंग नहीं हुई थी हम लोगों को। स्नो लेपर्ड एंड पैलासिस कैट भी थे टारगेट में, बट वो दोनों ही नहीं दिखे थे। बट ये व्हाइट ब्राउड टिट वॉबलर मिला तो एक सेटिस्फैक्टरी ट्रिप हो गया था। ये मेल था। उसके बाद फिर मुझे समर सीजन में ही मैंने ट्राई किया, तो नुब्रा वैली में काफी अच्छी साइटिंग्स हुई 2019 में, तो हर ग्रुप में दिखा। तो ये बेसिकली उले विलेज की लोकेशन है। और लास्ट ईयर का ये फीमेल का फोटो है। फिर ये समर सीजन का फोटो है। So ये रेजिडेंट बर्ड है वहाँ? ये रेजिडेंट बर्ड है वहाँ का। तो ये समर में भी दिखता है, विंटर्स में भी दिखता है। ये क्या है कि समर सीजन में जिन बुशेस में ये दिखता है, लेह बेरी बोलते हैं उसको, तो लेह बेरी बहुत थिक होती है, इसको देख पाना बहुत डिफिकल्ट है। और कॉल भी इसकी एकदम हल्की होती है, लाउड कॉल नहीं होती है। कॉल से भी पता लगा पाना डिफिकल्ट होता है। बट विंटर्स में क्या होता है कि उन जो बुशेस हैं उनके ऊपर में लीव्स सब लीफ फॉल होता है, तो विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। रहता उन्हीं बुशेस के आसपास है, तो इसको इजिली देख सकते हैं उस टाइम पे। समर सीजन में भी इस बार हम लोग लकी थे कि हमारे हर एक ग्रुप को साइटिंग हुई इसकी। ये ग्रुप था जिन्होंने विंटर्स में देखा टिट वॉबलर, वो भी माइनस आई थिंक 30 के आसपास टेम्परेचर था उस टाइम पे। लद्दाख में और विंटर्स की और क्या स्पेशलिटीज है? विंटर्स की स्पीसीज की वैसे तो वहां पे जैकडो मिलता है उस टाइम पे। रूक है, जैकडो भी नहीं, रूक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रो की एक स्पीसीज है। रूक की साइटिंग होती है बहुत अच्छी। मंगोलियन फिंच समर सीजन में बहुत कम इंडिविजुअल दिखते हैं, जून के फर्स्ट सेकंड वीक में ही ज्यादा दिखता है। उसके बाद बहुत कम साइटिंग्स होती हैं। बट अगर विंटर्स में जाते हैं तो बड़े फ्लॉक्स दिखते हैं। सो मैंने अराउंड 200 का फ्लॉक देखा है मंगोलियन फिंच का। और मैक्सिमम बर्ड्स बड़े बड़े फ्लॉक्स में रहती हैं। जो बर्ड आपको समर सीजन में सिंगल इंडिविजुअल या 2 या 3 दिखेंगी, वो 100-200 के फ्लॉक्स में दिखती है विंटर्स में। तो फोटोग्राफी के हिसाब से काफी अच्छा है। अभी आगे एक और बर्ड आएगी जो विंटर्स की साइटिंग है, जो समर्स में डिफिकल्ट है, टिबेटन पार्ट्रिज। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी फोटोग्राफ करना समर सीजन में बहुत डिफिकल्ट है। So बहुत that's a migratory bird. नहीं, दैट इज ऑल्सो रेजिडेंट, बट वो लोकली माइग्रेट करता है कि विंटर्स में वो हायर हिल्स में रहेगा, टॉप्स में रहेगा, और सॉरी समर्स में। और विंटर्स में वो नीचे विलेजेस के पास आ जाता है, जहाँ पे उसको फीड मिलता है। बेसिकली जो गांव में जो खेत होते हैं फसल काटे हुए, उन खेतों में वो आ जाते हैं खाने के लिए। और शाई भी नहीं होते हैं उस टाइम पे। समर सीजन में तो उनको देखना एकदम आपके पास भी होगा, रॉक में छिपा होगा, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये वो स्पीसीज है टिबेटन पार्ट्रिज। ये भी विंटर का फोटोग्राफ है। समर सीजन में ऐसे फोटोग्राफ मिलना बहुत डिफिकल्ट है। विंटर्स में जब हमने इसको देखा तो अराउंड 50 का फ्लॉक था। लेह से मनाली वाले रोड पे रूमसे करके एक जगह है, उस गांव के अंदर हमें दिखा था ये।
तो हमें न्यूज मिली थी वहां पे भी स्नो लेपर्ड की विंटर टूर में, तो बेसिकली हम स्नो लेपर्ड ही चेज करते हैं, बट हम लोग गए वहां पे तो ये 50 बर्ड्स का फ्लॉक देख के सबको मतलब इतना अमेजिंग था कि हमने हाफ डे वहां पे स्पेंड किया। कोई शॉप नहीं खुली थी, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, अकेले हमारी गाड़ी थी और हम ही 4-5 लोगों का ग्रुप था, हम ही लोग थे वहां पे। और ये वहां पे जो गांव वालों का जो भूसा रखा रहता है कैटल्स को खिलाने के लिए, जो फोडर होता है, ये बर्ड्स उसमें फीड कर रही थी। रोड पे एकदम हाई लेवल पे थी, आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रोज में लेफ्ट साइड वाले फोटो में दिख रहे हैं फोडर के। तो इसको फोटोग्राफ करने के लिए बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से लद्दाख में विंटर्स है। समर्स में कभी कभी फोटोज अच्छी मिलती हैं, बट हमेशा नहीं। विंटर्स में ऑलमोस्ट श्योर साइटिंग है बहुत These are सारे all altitudinal migrants, नीचे आ जाते हैं। हाँ ऑल्टीट्यूडनल है, और मतलब बहुत ज्यादा रेंज में माइग्रेट नहीं करता है ऑल्टीट्यूड में भी। सपोज कोई विलेज है कहीं पे वैली में या रोड के किनारे, उसके जस्ट ऊपर वाली जो रिज होगी उसी पे समर्स में रहेगा, वहां से बस नीचे आ जाएगा। ये नहीं कि किलोमीटर्स तक माइग्रेट करेगा, बट समर्स में देख पाना बहुत डिफिकल्ट है। एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है ग्रैंडाला, जो बेसिकली जो राइट साइड वाली फोटो है, ये तो काफी पॉपुलर हुई, काफी वायरल हुई इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जब मैंने इसको पोस्ट किया था। और इसकी भी कहानी है कि ये हमें लाचेन में सिक्किम में दिखा, नॉर्थ सिक्किम का टूर 2019 मार्च में किया था मैंने। और बेसिकली यही इमेज थी दिमाग में कि ट्री के ऊपर ग्रैंडालास। आदित्य चवन पुणे से वहां के ट्रिप्स करते थे रेगुलर, उनकी फोटोग्राफ्स लोगों ने देखी थी, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी यही था कि ग्रैंडाला ऐसे मिलना चाहिए। हम लोग जैसे ही लाचेन पहुंचे, हमने गुरु डोंगमार जाना था नेक्स्ट डे, बट हैवी स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉक हो गया। ये बेसिकली लोकेशन है लाचेन का सिक्किम में, जो लोग गए होंगे नॉर्मल ट्रिप पे भी लोग जाते हैं पर्यटन के अलावा भी। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसा हाल था उस टाइम पे। ऐसे स्नो हो गया था रोड पे, तो हम लोग नहीं जा पाए गुरु डोंगमार। और उससे पहले दिन हमें जब ये स्नोफॉल हुआ, सिंगल बर्ड खाली ये ग्रैंडाला जो लेफ्ट साइड में है, एक पेड़ के ऊपर सिंगल बर्ड दिखा। तो सबने जितने फोटोज ले सकते थे काफी टाइम स्पेंड किया कि अच्छा फोटो मिल जाए। ये अकेली बर्ड वहां पे बैठी रही, बट थोड़ा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट थे सब कि ज्यादा बड़ा फ्लॉक नहीं मिल रहा है। लकीली अगले दिन और रात में स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल होने के बाद पूरा बड़ा फ्लॉक, मोर देन आई थिंक 800-900 बर्ड्स होंगी उस फ्लॉक में। वो पूरा फ्लॉक नीचे आ गया। मैंने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही लाइट बहुत कम थी और थोड़ा मोबाइल से जूम करके बनाया था। इस तरीके से पेड़ भरा हुआ था पूरा। मेरे साथ में जो ग्रुप में मेंबर्स थे संयुक्त श्रीधरण, उन्होंने कुछ फोटोज लिए हैं जिनको स्टैग किया है, तो अमेजिंग है वो, मतलब एक्सपीरियंस ही अमेजिंग था। ये तो पूरा हाफ डे हमने स्पेंड किया, ये फ्लॉक वही घूमता था। तो गुरु डोंगमार तो नहीं जा पाए, जहाँ पे कुछ लाइफर्स होते हैं सब लोगों के, इनफैक्ट मेरा भी लाइफर होता है रीफर्स नेक्ट स्नो फिंच, तो वो नहीं कर पाए हम लोग, हमें वापस आना पड़ा फिर यही ग्रैंडाला देख के। बट सेटिस्फैक्टरी ट्रिप रहा कि इस तरीके की साइटिंग ग्रैंडाला की हमेशा पॉसिबल नहीं होती है। और ग्रैंडाला पूरे इंडिया में शायद 2-3 जगह दिखता है। फोटोग्राफी के लिए तो जहाँ जाते हैं लोग, एक तो ये लोकेशन है, दूसरा सेला पास है अरुणाचल में। बट मैक्सिमम जो नंबर्स, ज्यादा नंबर्स जो दिखते हैं बर्ड्स के, वो लाचेन में ही दिखते हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। दिसंबर में आता है और मार्च, मिड मार्च कभी कभी स्नोफॉल होता है, तो मार्च के एंड तक रहता है। अदरवाइज दिसंबर जनवरी ज्यादा अच्छा टाइम है इसको देखने के लिए। बट रोड ब्लॉक होने का रिस्क रहता है, परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, इनर लाइन परमिट, तो वो नहीं मिलता है कई बार अगर मौसम खराब है। तो हम लोगों ने मार्च में ट्रिप किया था, लक था हमारा, तो हमें इस तरीके से ये बर्ड मिल गई वहाँ पे। ग्रैंडाला साइटिंग वेस्टर्न हिमालयाज में भी हुई है? वेस्टर्न हिमालयाज में भी है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो साइटिंग्स होती हैं, इसी तरीके की साइटिंग होती है गंगोत्री नेशनल पार्क में विंटर्स में। हरसिल में, बेसिकली हरसिल जगह का नाम है उत्तरकाशी में, तो जहाँ पे इस तरीके का फ्लॉक दिखता है। बट विंटर्स में वहाँ टूरिस्ट को जाने के लिए परमिशन नहीं देता है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। जिन लोगों ने देखा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि थाउजेंड्स में दिखते हैं। ये ग्रुप था हमारा। एक और इम्पोर्टेंट साइटिंग है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जो बहुत कम लोगों के पास अच्छे फोटोज हैं इसके। जो फोटोग्राफ्स इंडिया से आते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही हैं, वहीं पर ये बर्ड दिखती है। अरुणाचल से बेसिकली फोटोज हैं मैक्सिमम इसके, अरुणाचल या मिजोरम से। ये फोटो मुझे मिला भूटान से, स्लेंडर बिल्ड ओरियोल का, और ये भी लक्की साइटिंग थी। ये बर्ड ऑलवेज टॉप में ही रहती है, बड़े टॉल ट्रीज के ऊपर। सो मेरा जो ग्रुप था, हम लोग इसको ढूंढ रहे थे कि अच्छा फोटो मिल जाए कहीं पे, कोई अच्छी पर्च पे आगे बैठे। तो आधा ग्रुप एक साइड था, आधा ग्रुप एक साइड था, कुछ लोग मेरे पास खड़े हुए थे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। अचानक ये बर्ड हमारे सामने आगे बैठ गई, और ये फुल फ्रेम फोटो है।
500 mm में फुल फ्रेम है, 200 500 mm यूज करता हूँ मैं 70-200 बॉडी पे। सो ये फुल फ्रेम फोटो इस तरीके से मिला। आई थिंक ये जो ओरिएंटल बर्ड इमेजेस पे मैंने जो फोटो देखी है, ये बेस्ट फोटो है जो हम 4 या 5 लोगों को मेरे ग्रुप में मिला था। 8 लोगों का ग्रुप था, 3-4 लोगों को नहीं मिला था ये वाली पंच में, बट ये सबके पास ये सेम एंगल का फोटो है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट फोटोज में से है आई थिंक इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सिलेंडर बिल्ड ओरियोल के। भूटान आप हर साल एक बार 1 या 2 ट्रिप लगाते हैं? हाँ, भूटान के मैं 3 ग्रुप कम से कम करता हूँ हर साल। इस साल भी मुझे मई में अभी भूटान ही होना था, आज वापस आता मैं। मेरा जो ग्रुप प्लान था 19 से 30 मई था, तो इस साल तो हो नहीं पाया क्या फिर भी। क्या खासियत है भूटान में ऐसी? भूटान में बेसिकली क्या है ना, फोटोग्राफी बहुत इजी है बर्ड्स की। अब रीजन, बहुत सारे रीजन बोलते हैं लोग कि हंटिंग नहीं होती है वहां पे, इसलिए बर्ड्स उतनी शाई नहीं है। और जो कलरफुल बर्ड्स हमारे यहाँ रेयर हैं वो वहाँ इजिली दिखती हैं। सपोज जैसे कि ब्लड फेजेंट है या सैटेड ट्रैगोपैन है, इजी साइटिंग्स है इन बर्ड्स की। वॉट स्ट्रोगन के लिए हम इतना ट्राई करते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ मिशमी हिल्स या ईगल नेस्ट में दिखती है, मंडाला में दिखती है कभी कभी, बट वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत इजी साइटिंग है उस बर्ड की। और विंटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाइट बैलिड हेरन दिखता है इजिली। Which is a endangered bird. There are very हाँ, few individuals left in the world now. क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आई थिंक 70+ इंडिविजुअल्स लेफ्ट। Critically endangered. That's right. क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो भूटान इसलिए स्पेशल है। और जो भी फोटोज मिलेंगे वहाँ का जो हैबिटेट है, जो ट्रीज हैं, वो इस तरीके से है कि आपको आई लेवल शॉट्स मिलते हैं। जो बर्ड फोटोग्राफी वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये एक और इम्पोर्टेंट बर्ड है अपने कंट्री से, पाइड विटियर, जिसकी की बहुत ज्यादा साइटिंग्स नहीं होती हैं। ये समर्स में ब्रीड करती है थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे। तो ये जो साइटिंग है बेसिकली ये हिमाचल से है। और आईडी करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरिएबल विटियर का भी एक रेस होती है जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगती है। तो जिनको पता है कि जिस लोकेशन पे हर साल ब्रीड करती है वहां पे तो लोग श्योर होते हैं कि हाँ ये पाइड विटियर ही है। अदरवाइज फोटोग्राफ खींचने के बाद इसका टेल का पैटर्न, नेक का वाइट का एक्सटेंशन, ये सब चेक करना पड़ता है। और ये जब फोटो मैंने ली तो पहले मैंने बोला कि ये पाइड विटियर है ग्रुप को। नीतू सेठी मैम थी मेरे साथ उस टाइम पे भी, ये हिमाचल में नाको में हमने फोटोग्राफ किया था। उसके बाद फिर कंफ्यूजन हो गया, पहले तो पाइड बोला, फिर कंफ्यूजन हुआ कि ये वेरिएबल विटियर होगा। फिर अभिनव चौधरी हैं हिमाचल से, अच्छे बर्डर हैं, उनको फोटोज भेजी मैंने। उन्होंने काफी रिसर्च किया, उन्होंने फिर लोकेशन पूछी, उन्होंने बोला कि वहाँ पे पाइड विटियर ही आता है। और फिर इसके और एंगल के बहुत सारे फोटोज थे, वो सब लोगों को भेजे तो कंफर्म हुआ कि ये पाइड विटियर ही है। तो इसकी भी बहुत ज्यादा फोटोज नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग है इसको ढूंढना भी, और 1 या 2 इंडिविजुअल ही होते हैं एक एरिया में। तो लद्दाख में या फिर वही स्पीति वैली में हमारे यहाँ दिखती है। नाको में हम लोगों को बेसिकली दिखी है, किन्नौर में ये लोकेशन है नाको की। So नाको का जो ट्रिप है किस कौन से एरिया के साथ कंबाइन करते हो आप? ये मैं छितकुल के साथ कंबाइन करके करता हूँ। Okay. तो हिमाचल में नाको और छितकुल 2 ही जगह हैं। नाको में इनफैक्ट हमारे लिए तो बहुत लकी रहा उस टाइम पे, 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज दिखी हमें उस साल वहाँ पे। लास्ट ईयर ही मैंने किया था जून फर्स्ट वीक में। एक तो ये था पाइड विटियर, दूसरा था यूरोपियन बीटर था, और हिमालयन स्नोको। तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज वहाँ पे मिली। और छितकुल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो बाकी जगह उतना इजीली नहीं मिलती हैं, जैसे व्हाइट चिक नटहैच है छितकुल में, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है उनकी, इजीली फोटोग्राफ कर सकते हैं वहाँ पे। गोल्ड क्रेस्ट है, बहुत अच्छे शॉट्स मिलते हैं गोल्ड क्रेस्ट के वहाँ पे। और वहाँ के एक स्टार गर्मियों में जा सकते हैं जी, वहाँ गर्मियों में जा सकते हैं, सर्दियों में वहाँ गर्मियों में, बरसात शुरू होने से पहले जो बेस्ट टाइम है। व्हाइट बेलिड रेड स्टार्ट वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूड नहीं की है। अगर अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं हम इसको कुछ और स्पीसीज के साथ में। तो व्हाइट बेलिड रेड स्टार्ट है। वेस्ट हिमालयन बुश वॉबलर है जो अनदर रेयर स्पीसीज है फ्रॉम इंडिया, वो भी वहाँ पे मिलता है, समर्स में ब्रीडिंग करता है। ये एक इंटरेस्टिंग साइटिंग है, मतलब ये मेमोरेबल साइटिंग है माउंटेन टेलर बर्ड की। इसके फोटोज हैं लोगों के पास में, हमारे यहाँ पे अरुणाचल में ईगल नेस्ट में और मिशमी हिल्स में दिखती है। बट इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है कि हम लोग भूटान की ट्रिप पे थे योंगकोला में, और हम लोग बर्डिंग करने गए थे योंगकोला से डाउन हिल, दैट इज ईस्टर्न भूटान का पार्ट है। और अचानक बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गया। आफ्टरनून की बर्डिंग थी, और जहां पर हमारी लॉज थी और जहां पर हम लोग थे, हमारी और लॉज के बीच में 9 प्लेसेस पे हैवी लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बर्स्ट जैसी कंडीशन थी। तो शाम को हम लोग फंस गए वहां पे। काफी कोशिश की इधर उधर से कांटेक्ट कर
कि कैसे वहां पे जाएंगे। अराउंड 10 किलोमीटर लॉज थी वहां से हमारी, तो हर एक टर्न पे लैंडस्लाइड था। फिर काफी लोगों से भूपेश गोयल, ब्रिगेडियर भूपेश गोयल मेरे साथ में थे, उन्होंने जो उनके लिंक थे वहां पे काफी लोगों से बातचीत की। उन्होंने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग एक सेफ साइड में गाड़ी लगाओ और रात को आपको गाड़ी में रुकना पड़ेगा, रोड खोल पाना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे हम रुके हुए थे उसके नीचे की तरफ भी लैंडस्लाइड हो गया था रोड पे कई जगह पे, और ऊपर की तरफ भी। तो हम लोग रात भर, हमने पूरी रात वो एक टोयोटा हाईएस वैन में बिताई। और हमारा इंटरेस्टिंग ड्राइवर था वहां पे, वो बोलता है कि आपको जापानीज गेस्ट हाउस में आपको आज की रात काटनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो गाड़ी हमारा जापानीज गेस्ट हाउस था। तो वहीं पे ये साइटिंग हुई थी माउंटेन टेलर बर्ड की। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक जाके रोड क्लियर हो पाया, तब हम लोग वहां से निकल के आए। बट ऑब्वियसली डिफिकल्ट बर्ड है, इसकी हमेशा कॉल सुनाई देती है या बुशेस में घूमते हुए दिखेगी अंदर। फोटोग्राफ करना क्लियर पूरा बर्ड आना बहुत डिफिकल्ट है। हार्डली कुछ ही लोगों के पास मेरे ख्याल से फोटोज होंगे इसके एकदम क्लियर पर्च पे इस तरीके से ओपन में। बट भूटान में ये कंपैरेटिवली इजीली मिल जाता है। ये योंगखोला की साइट है। काला डूंगी की भी थोड़ा बात कर लेते हैं अपने एरिया की। ये ग्रे क्राउन प्रीनिया है, जो अनदर वेस्टर्न हिमालय एंडेमिक है। तो इसके लिए भी बेसिकली लोग या तो नेपाल जाते हैं या फिर उत्तराखंड आते हैं इस बर्ड को फोटोग्राफ करने के लिए। ये इसका ब्रीडिंग प्लूमेज का फोटो है, समर सीजन का, जून मंथ का। तो इसका क्राउन आप देख सकते हैं पूरा ग्रे है। नॉन ब्रीडिंग में विंटर्स में क्राउन में इतना ही ग्रे होता है इसके। ये बर्ड भी जब मैंने अपनी फर्स्ट ट्रिप में देखी तो मुझे इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, बट धीरे धीरे पता चला कि इतनी कॉमन बर्ड नहीं है। जब मेरे पास में काफी लोग जो इंडिया में 1000 और प्लस स्पीसीज जिन्होंने देखी हुई है, बट ये बर्ड नहीं देखी थी, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे इसकी वैल्यू रियलाइज हुई। फिर मैंने इसके 2-3 स्पॉट अपने आसपास के एरिया में ढूंढे, और ये स्पॉट तो मेरे घर के काफी पास में है जहाँ पे ये रेगुलर साइटिंग होती है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हम लोगों ने इसकी फोटोग्राफ की अपने घर के पास में। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ग्रे क्राउन प्रीनिया। ग्लोबली थ्रेटेंड है क्योंकि हैबिटेट लॉस की वजह से नंबर्स कम हो रहे हैं। और बेसिकली लेंटाना की जो बुशेस होती हैं उन्हीं में ये मोस्टली मिलती है। पहले जो इसका स्पॉट था उत्तराखंड में, लोग इसको पंगोट के पास में एक जगह थी बगड़, जो नीचे कच्ची रोड है, जिससे इनफैक्ट आपको याद होगा कि हम लोग ट्रैक करके आए थे जब स्नोफॉल हो गया था। तो जहां तक हमारा पोनी सामान लेके गया था उस वाले स्पॉट पे दिखती थी, बट वहां पे इसकी साइटिंग्स काफी कम हो गई है, अभी नहीं दिखती है। तो मैंने भी वहां पे पहले देखी है, बट अभी जो मेन एरिया है यहाँ पे काफी अच्छे नंबर्स में दिखती है काला डूंगी के पास में। 8 से 10 इंडिविजुअल एक फ्लॉक में दिख जाते हैं। अब बात करते हैं अपनी मेन बर्ड की, जो इस प्रेजेंटेशन का मेन अट्रैक्शन रखा हुआ था हमने, स्क्लेटस मोनाल की अरुणाचलेंसिस सब स्पीसीज। सो ये बेसिकली लकी साइटिंग थी। ना तो मुझे आइडिया था, ना ही जो गाइड था लोबसंग था मेरे साथ में उस टाइम पे, उसको आइडिया था कि हम कभी ये व्हाइट टेल्ड मोनाल भी इसको बोलते हैं, इसको देख पाएंगे। और ये वैसे भी मई का मंथ था, मई को ऑफ सीजन लोग कंसीडर करते हैं अरुणाचल के उस पार्ट में, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। तो बट मेरा ग्रुप था तो हम लोग पहले हमने सिक्किम किया, सिक्किम से ही हम सीधे अरुणाचल गए। तो अप्रैल लास्ट वीक में हमने ट्रिप शुरू किया था अपना 20 अप्रैल के आसपास, और मई फर्स्ट वीक तक हमारा ट्रिप एक्सटेंड हुआ है, फर्स्ट सेकंड वीक तक। हम लोग ईगल नेस्ट करने के बाद सेला पास गए थे, और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हम 2:30 हमने स्टार्ट किया था दिरांग से अर्ली मॉर्निंग, और हम सनलाइट होने तक सेला पास के पास पहुंचे। तो अराउंड 5 किलोमीटर पहले सेला पास से 5-7 किलोमीटर अचानक नजर पड़ी कि नीचे हिमालयन मोनाल बैठा हुआ है। तो हिमालयन मोनाल भी उतना कॉमन नहीं है उस पार्ट में अरुणाचल के या इंडिया के कहीं, जितना हमारे यहाँ कॉमन है। वेस्टर्न हिमालयाज में ज्यादा नंबर्स में अच्छे से दिखता है, बट वहाँ वो भी रेयर साइटिंग है। तो जैसे ही देखा कि हिमालयन मोनाल है तो सब उतर गए कि ये इसका फोटो लेते हैं मेल का। हिमालयन मोनाल के जस्ट सामने ही ये स्क्लेटस मोनाल का, जो व्हाइट टेल मोनाल बोलते हैं, वो बैठा हुआ था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस स्पीसीज का। लोबसंग ने बोला कि ये व्हाइट टेल मोनाल है शायद। तो उसकी टेल एकदम से व्हाइट अलग ही दिख रही थी, ये आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, हिमालयन मोनाल भी और ये स्क्लेटस मोनाल भी। और मेरे साथ में जो ग्रुप था उन्होंने भी फोटोज ली, और मेरा क्या था कि मेरा जो लेंस था, मेरे लेंस का ऑटो फोकस खराब था, तो मैनुअल फोकस से मैंने फोटो लिए। उस ट्रिप में ऑटो फोकस बाई चांस खराब हो गया था, और इसने हार्डली हमें 3-4 मिनट का टाइम दिया। अपना गाड़ी से उतर के फोटो ली, उसके तुरंत बाद ही ये फ्लाई कर गया। और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि ये दिखा है व्हाइट टेल्ड मोनाल, तो जितने भी वहाँ लोकल गाइड्स थे, लोकल बर्डर्स थे, सबने ट्राई किया, बट ये लक था हम लोगों का कि हमें दिखा। तब से लेके अभी तक किसी को साइटिंग नहीं हुई है। फिर मैंने इसका थोड़ा लिटरेचर पढ़ा तो पता चला कि 2009 में ही
इस सब स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया था, और उसी एरिया में ये मिलती है अरुणाचल के। सो ये वो फर्स्ट 2 फोटो है मेरे पास जो अच्छे फोटोज हैं इसके, एक हिमालयन और इसका भी दोनों का है, बट वो उतना अच्छा नहीं है फोटो क्योंकि मैनुअल फोकस का था, और मॉर्निंग की ब्राइट सनलाइट पड़ रही थी इसके ऊपर, तो कलर्स निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट था इसका। ये थोड़ा बेटर लगता है, ये डिफिकल्ट है इसमें। और स्केलेटरी मोनाल में जो विजिबल डिफरेंस है वो यही है कि टेल के ऊपर उसमें ब्राउन बैंड होता है, इसमें नहीं होता है, इसकी पूरी टेल व्हाइट है, तो इसलिए इसको व्हाइट टेल्ड मोनाली बोलते हैं, और ये उसी पार्ट में मिलता है अरुणाचल के, इसलिए सब स्पीसीज का नाम भी अरुणाचलेंसिस है, अरुणाचल के नाम पे। I can see on eBird there are only 30 observations in total, हाँ, Slatus हाँ, monarch की, और सिर्फ 7 फोटोज हैं और सिर्फ 30 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल। या तो बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है इसको, आई थिंक फोटोज तो बहुत कम लोगों के पास है। ओरिएंटल बर्ड इमेजेस पे यही मेरे 2 फोटोज हैं, बाकी किसी का कोई फोटो नहीं है इंडिया से इसका, अरुणाचलेंसिस सब स्पीसीज का। यस। और इनफैक्ट उसमें ई बर्ड पे जो साइटिंग्स होती हैं वो दोनों सब स्पीसीज को कंबाइंड करके होती है, सब स्पीसीज की नहीं है। वो 30 जो साइटिंग्स हैं वो स्केलेटरी और अरुणाचलेंसिस दोनों को मिला के होंगे, दोनों ऑब्जर्वेशंस। वो अलग अलग स्पीसीज नहीं है, तो इसलिए अलग अलग नहीं होता है उसको कंसीडर। सो ये तो इस प्रेजेंटेशन में जो बर्ड हमने कवर करनी थी वो कर दी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ राजेश, बिफोर why don't you finish this? Why don't you finish the species that you want to cover and then we will do the Q&A session? हाँ हाँ हाँ, तो इसको फिनिश कर लेते हैं पहले। ये तो मेरी विश लिस्ट है इंडिया से, अभी कुछ प्लेसेस हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं, 20 स्टेट्स किए हैं, बट अभी भी बचे हुए हैं बाकी तो 10। तो मैंने अभी तक निकोबार नहीं किया, तो निकोबार मेगापोड मेरी टॉप मोस्ट है इस लिस्ट में। देन मिसिस ह्यूम्स फेजेंट है, नारकोंडम हॉर्नबिल है, सब डिफिकल्ट स्पीसीज हैं, बट ऑब्वियसली एक ना एक दिन कवर करनी है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, टेमिंग्स है, ये भी दोनों स्पीसीज अभी बची हुई है मेरी। वेस्टर्न ट्रैगोपैन की जो अभी साइटिंग रिपोर्ट आई है मुंशियारी से, क्या वो कंफर्म्ड है? नहीं सर, वो कंफर्म नहीं है क्योंकि वो फोटोग्राफ नहीं कर पाए। वो जो गाइड है उसने बोला है कि कॉल जो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन से मैच कर रही थी। अच्छा। और जो बर्ड भी दिख रही थी, फीमेल देखी उसने, तो वो फीमेल वेस्टर्न ट्रैगोपैन के जैसी लग रही थी, बट सैटेड ट्रैगोपैन और वेस्टर्न ट्रैगोपैन की फीमेल में फील्ड में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर अच्छा बर्डर नहीं है कोई तो श्योर नहीं है। बट पहले भी लोगों ने बोला है वहां से कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन वहां लोगों ने देखा हुआ है, लोकल जो बर्डर्स हैं वो बोलते हैं। तो जब तक फोटो नहीं आएगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि वो कंफर्म है। ठीक बात। देन हिमालयन क्वेल ऑब्वियसली हो सकता है, अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारी बर्ड्स वापस आ रही है हैबिटेट में, तो क्या पता इस विंटर्स में, कमिंग विंटर्स में कुछ चांसेस बने हिमालयन क्वेल के। डांस कॉर्सर डिफिकल्ट है, ये भी नॉकटर्नल बर्ड है। मास्क फिनफुट जस्ट वन साइटिंग फ्रॉम सुंदरबन। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, तो ये सब लक वाली बर्ड्स हैं कुछ, तो कि कभी कभी इंडिया में आती हैं, और कुछ डिफिकल्ट टेरेन वाली हैं। क्रेस्टेड वॉर्बलर का लोकेशन कौन सा बेस्ट है? क्रेस्टेड टिड वॉर्बलर की जो साइटिंग्स हैं वो तवांग एरिया से हैं, अरुणाचल में जो सेला पास है, सेला पास को क्रॉस करने के बाद बॉर्डर टाउन है तवांग। तो इंडिया की जो भी साइटिंग्स हैं वो उधर ही से हैं, सेला पास से और तवांग के बीच वाले एरिया से। तो अभी रिसेंटली एक फोटो लोबसंग ने शेयर किया था फेसबुक पे क्रेस्टेड टिड वॉर्बलर का, तो बहुत कलरफुल स्पीसीज है। और वैग्रेंट एज ए वैग्रेंट इंडिया की लिस्ट में है वैसे, बट कंफर्म ही ऑलमोस्ट। टाउनी आउल कश्मीर में मिलता है, तो अभी तक कश्मीर का ट्रिप मैंने बर्डिंग को फोकस करते हुए नहीं किया है। तो ये भी एक टारगेट स्पीसीज है जिसको करना है। कश्मीर नटहैच और टाउनी आउल एंड ऑरेंज बुलफिंच, ये सब वहां पर भी हैं लाइफर्स, जो मेरे लिए लाइफर्स हैं। सो वही मैंने फ्यूचर प्लान्स भी मेरे वही है कि उन एरियाज को कवर करना है जहाँ पे मोस्टली ये वाली स्पीसीज मिलती हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कश्मीर, तेलंगाना। और कुछ अगर इंटरनेशनल टूर्स की बात करें तो इस साल बहुत सारे इनमें से प्लान किए हुए थे, बट कुछ तो नहीं हो पाएंगे। पापुआ न्यू गिनिया मैंने ऑलरेडी जुलाई में प्लान किया हुआ था, बट कल ही सिंगापुर एयरलाइंस का मैसेज आया कि 31 जुलाई तक कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं करेगी, तो वाया सिंगापुर हम लोग जाने वाले थे। कोस्टा रिका दिसंबर में प्लान है, बट अभी तक कुछ श्योर नहीं है कि होगा ये वाला ट्रिप भी या नहीं होगा। ब्राजील भी सोचा था कि कोस्टा रिका के साथ ही कंबाइन करके करूंगा। इथियोपिया भी एक अच्छा कंट्री है जहाँ पे डेंसिटी बहुत अच्छी है बर्ड्स की। नो कीनिया इन दिस आई सी। नहीं, कीनिया मेरे टारगेट में नहीं है। कीनिया लोग जाते हैं, बर्डिंग बहुत अच्छी है कीनिया में भी, बट मोस्टली लोग मैमल्स के लिए जाते हैं। कीनिया भी ऑलरेडी मैंने प्लान किया हुआ है इस साल, बट मेरे जो
फेवरेट कंट्रीज हैं वो यही हैं, कोस्टा रिका, पपुआ न्यू गिनिया, ब्राजील एंड इथियोपिया। और मेरा जो फ्यूचर का प्लान है, जैसे अभी कैंप बिल्यू था वो तो अभी बंद कर दिया हमने, किसी को दे दिया है, वो अपना एक कॉमर्शियल वहाँ पे बना रहे हैं सेटअप। तो मेरा जो प्लान है इको फ्रेंडली लॉज एक सेटअप करना उत्तराखंड में, बेसिकली अपने कालाडूंगी के एरिया के आसपास ही। सो फ्यूचर का प्लान यही है कि कुछ बर्डिंग वाले लोग भी रुक सके इसमें, और जो नेचर लवर्स हैं, पीसफुल एरियाज में रुकना चाहते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे आके स्टे कर सके। तो एक चीज बताइए राजेश, अब हमारा जो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। वेस्टर्न हिमालयाज में जो ईस्टर्न हिमालय एरिया है वहाँ पे काफ़ी एवियन नेचुरलिस्ट हैं, काफ़ी गाइड्स हैं जो काफ़ी एक्सप्लोरेशन करते हैं और आप भी जाते रहते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज एरिया स्पेशली अगर हम देखें, उत्तराखंड, वेस्ट ऑफ उत्तराखंड काफ़ी लेसर एक्सप्लोर्ड है, स्पेशली अगर हम देखें हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर एरिया है या अपर रीजन ऑफ हिमाचल है। उत्तराखंड तो आपने सारा एक्सप्लोर किया हुआ है, फ्रॉम मुनस्यारी टू चोपटा, लोअर हिल्स, एवरीथिंग। पर उसके वेस्टर्न साइड में कौन से ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे बर्डिंग हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे अभी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, काफी लोग गए नहीं हैं, जहाँ पे अच्छी डिस्कवरीज हो सकती हैं स्पीशीज की? सही, अभी गढ़वाल के कुछ पार्ट्स हैं कि जहाँ पे कुछ लोग गए हैं बट बहुत ज्यादा लोगों ने विजिट नहीं किया, जैसे हर की दून वैली है। सो हर की दून वैली बहुत अच्छा एरिया है जो हिमाचल का बॉर्डर है, और वहाँ पे स्पीसीज भी काफी काफी रिच है। बट क्या है ना कि वो ट्रैकिंग वाला एरिया है, रोड अप्रोच नहीं है। अभी बेसिकली बॉर्डर कम है अपने यहाँ और फोटोग्राफर ज्यादा है, बड़ा लेंस लेके चलना, ट्राइपॉड लेके चलना उन टेरेन में डिफिकल्ट है। बट कुछ और भी एरियाज हैं ऐसे गढ़वाल में जो लेस एक्सप्लोर्ड है। रीजन क्या है कि अगर हम बात करें, कोई देहरादून आता है या हरिद्वार आता है, वहां पे कोई अच्छे बर्ड गाइड के लिए बोलता है, उस एरिया में अच्छे बर्ड गाइड अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पहले कोई भी नहीं था। अभी कुछ लड़के हैं जो जी नेशनल पार्क के आसपास के एरियाज में रहते हैं जो अच्छे से भी गाइडिंग कर रहे हैं और कुछ एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट पहले कोई ऐसा गाइड अवेलेबल नहीं था, लोग जाते नहीं थे ज्यादा उन एरियाज में। अभी मेरे भी काफी एरियाज उस छूटे हुए हैं उधर उस वाले पार्ट में कि जो मुझे करने हैं, जहाँ पे हो सकता है कुछ डिफरेंट स्पीसीज भी मिले हमें। ऐसे कौन से 2-3 टॉप एरियाज हैं जो आप टारगेट करना चाहोगे? एक तो गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया है, मैंने नेलोंग वैली करके एक जगह है वहाँ पे। नेलोंग वैली अभी 3-4 साल पहले ही गवर्नमेंट ने ओपन किया है टूरिस्ट के लिए, बट वहाँ पे स्टे का भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो वहाँ का जो जियोग्राफी है वो बेसिकली लद्दाख जैसा है टेरेन जो वहाँ का है। तो वो मेरी टॉप प्रायोरिटी में है कि उस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए ताकि वहाँ पे कुछ डिफरेंट स्पीसीज निकल के आए सामने। और ये हरकीदून वैली भी मेरी प्रायोरिटी में है। इसके अलावा खिरसू करके एक जगह है गढ़वाल में, वो भी बहुत अच्छा एरिया है। इनफैक्ट अभी लास्ट सीजन में चीड़ बटिया करके एक जगह है जिसको चोपता का ऑल्टरनेट मान रहे हैं लोग, तो वहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल कराया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लास्ट सीजन में, विंटर्स में। मैं नहीं जा पाया था बाई चांस, बट वहाँ का भी हैबिटेट बहुत अच्छा है और चीड़ फेजेंट भी वहाँ पे कॉमनली दिखता है बोलते हैं, इसलिए उस जगह का नाम चीड़ बटिया रखा हुआ है। चीड़ फेजेंट, चीड़ बटिया ये कौन से रीजन में है? सॉरी, कौन से रीजन में है? ये गढ़वाल में है, रुद्रप्रयाग के पास है। इनफैक्ट मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था एरिक शिप्टन की, जिन्होंने नंदा देवी एरिया की पूरी फर्स्ट एक्सप्लोरेशन करी थी 1950s में। नंदा देवी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पूरा एरिया फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो उसमें भी काफी बर्ड्स का मेंशन है। और वो काफी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए रोमेल का, डू यू रेकी एन एरिया बिफोर यू डू बर्डिंग ग्रुप फॉर द रीजन? हाँ डेफिनेटली, मतलब मैं रेकी के लिए क्या होता है ना, या तो मैं खुद जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है साथ में, और कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एज ए क्लाइंट ही जाते हैं मेरे साथ में, बट वो एग्री हो जाते हैं। उनको बोल देता हूँ मैं पहले कि ये एरिया में मेरा फर्स्ट ट्रिप है और रेकी ट्रिप है, सो वो ट्रिप का चार्ज पे करके जाने के लिए एग्री होते हैं। तो वो रेकी करने के बाद ही मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ पे प्रॉपर ग्रुप अनाउंस करता हूँ उस एरिया के लिए। एक और क्वेश्चन है आपके लिए प्रतीक गोयल से। राकेश भाई, कैन यू सजेस्ट वेयर टू स्टार्ट आवर फर्स्ट बर्ड फोटोग्राफी सफारी? देखिए, इजी प्लेस से स्टार्ट करेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं तो सातताल ही बोलूंगा किसी को भी। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो सातताल में आए सबसे पहले, वहां पे कलरफुल बर्ड्स हैं, फोटोग्राफी इजी है, साइटिंग इजी है। सो सातताल कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा कि हाँ वाकई कुछ है। अगर आप डिफिकल्ट प्लेस से शुरू करेंगे तो हो सकता है आप फर्स्ट ट्रिप में ही इंटरेस्ट लूज कर दें। तो बेस्ट ये है कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटी और साइटिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो सातताल मेरे हिसाब से बेस्ट है।
बट 7 साल में काफी कंस्ट्रक्शन और डिस्टरबेंस हो गया है। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार 7 साल गया था 2014 दिसंबर में, जी। उसको करीब 5 साढ़े 5 साल हो गए। तो इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कितना 7 साल में बर्डिंग में स्पीशीज में कमी हो गई है, या बर्डिंग एक्सपीरियंस में आप बोले कम हो गया है 7 साल? स्पीसीज तो अभी भी है 7 साल में, बट बर्डिंग का पैटर्न चेंज हो गया 7 साल में। अभी लोग बर्डिंग के लिए नहीं जाते हैं, अभी लोग जाते हैं फोटोग्राफी के लिए, और हाइड फोटोग्राफी वहां पे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। हम्म। तो हाइड में तो लिमिटेड स्पीसीज आएंगी, वो सारी स्पीसीज तो नहीं दिखेंगी जो वहाँ फॉरेस्ट में है। तो लोग जो जो ट्रेंड है बर्डिंग का वो चेंज हो गया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि काफी सारे गाइड्स आ गए हैं वहां पर अभी। वैसे तो अच्छा है कि अभी जिस तरीके का बर्ड जो हॉबी डेवलप हो रही है बर्डिंग के फोटोग्राफी की लोगों में, उस हिसाब से जितने गाइड हों उतना अच्छा है। बट वो जो एक ट्रेंड है बर्डिंग का वो चेंज हो रहा है, वो अच्छा नहीं है। तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज लोग मिस करते हैं। सबके पास एक जैसे फोटो होंगे, एक जैसी स्पीसीज होंगी। अगर स्टूडियो की बात करें, पहले वो पब्लिक स्टूडियो था जिसमें आर्टिफिशियली बहुत कम चीजें लोग करते थे, खाली पॉइंट्स वगैरह लगाते थे, ज्यादा कुछ नहीं होता था, कोई फीड नहीं डालता था, खाली पानी के ऊपर बर्ड आती थी। और मेरी भी जो पहली ट्रिप थी जून 2012 की, मुझे याद है, आई थिंक मैंने बाद में काउंट किया फोटोग्राफ्स देख के, 37 के आसपास स्पीसीज हमने वहां पे खींची थी। उसमें कुछ मतलब मैक्सिमम 30 के आसपास तो उसी पॉइंट से थी जहाँ पे बर्ड्स नहाने के लिए आती हैं, और बाकी आसपास के एरिया से थी, थोड़ा इधर उधर उसके स्टूडियो पॉइंट में। अभी अगर वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी एक्टिविटी बर्ड्स की कम हो गई है, क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक बात। अभी वहां पे कभी कभी लोग फोटो शेयर करते हैं, मैं तो बहुत कम जाता हूँ अभी 7 साल में, बट कि 35 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और बहुत क्लोज बैठे हुए हैं, कि जहाँ पे बर्ड्स आती हैं पानी पे। आई नो 2 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहां बंद कर बैन दिया कर था दिया क्योंकि था। लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों में। कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मैं भी उस दिन वही था जब वो इंसिडेंस हुआ। तो उसके बाद एक दो दिन बंद रहा, वो फिर चालू हो गया। बट वहाँ पे भी नंबर ऑफ स्पीसीज काफी कम हो गई हैं। जो लोग पहले से जाते थे, कल्याण सिंह सजवाण जी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही, हम्म। वो तो बोलते हैं कि 40+ स्पीसीज पहले आती थी जब ये शुरू हुआ था। तो बट अभी तो वहाँ पे कोई बैठेगा तो हार्डली 15 to 18 स्पीसीज या 20 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आती है एक दिन विनोद शर्मा का क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन इज भूटान प्लान नेक्स्ट? में। शर्मा सर, भूटान अब नेक्स्ट होगा, एक विंटर्स में भी एक ट्रिप सोच रहा हूँ, बट अभी कुछ पता नहीं है कि इंटरनेशनल विजिटर्स को अलाउ करेंगे या नहीं। तो विंटर्स में जनवरी में होगा मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज अप्रैल में ही करेंगे नेक्स्ट। जो इस साल की डेट्स थी प्रोबेबली उन्हीं डेट्स में हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे उसको। तो भूटान विंटर्स में आपने आज तक नहीं करा है? भूटान विंटर्स में मैंने अभी तक नहीं किया है, मतलब कारण? विंटर्स की भी मेरी एक ही स्पीसीज है वहां पे जो इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, अगर बात करें तो व्हाइट बैलिड हेरन। अदरवाइज कुछ और भी स्पीसीज है जो वहाँ बहुत अच्छी साइटिंग्स होती है, जैसे व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है, और रेड थ्रोटेड थ्रश है। तो इन सब की भी बहुत अच्छी साइटिंग्स विंटर्स में वहां पे होती है, हम्म। तो कंपैरेटिवली रेयर है इंडिया में। ओके। नितिन का कहना है कि नंदा देवी में उनको ब्रैम्बलिंग की साइटिंग हुई है। हाँ, ब्रैम्बलिंग दिखती है हमारे यहाँ, मेरे ग्रुप ने भी देखी है। मेरा बाय चांस लाइफर मिस हुआ था। हम लोग विंटर्स में हमने हेमकुंड साहिब किया था एक बार, दिसंबर में। सो उसमें नितिन घोरपड़े मुंबई से, वो थे मेरे साथ में, और एक और बर्डर थे मेरे साथ में, वो बेसिकली ट्रैकर थे। तो हम लोग जो मेन प्लान था वो था हिमालयन ब्लैक बेयर देखना था। हम्म। तो उस टाइम पे वहां पे सारे गेस्ट हाउस बंद हो जाते हैं, सब लोग गेस्ट हाउस बंद करके नीचे आ जाते हैं। जो ब्लैक बेयर्स हैं वो, उनको जो राशन वहां पे रखा रहता है उसकी खुशबू से वो गेस्ट हाउस के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं खाने के लिए। तो वो बेस्ट साइटिंग वहां पे होती है उस टाइम पे। बट अकोमोडेशन कोई भी ओपन नहीं होती है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पे जिनका अपना होटल है। जब हम लोग गए तो उन्होंने 2-3 लेबर साथ लेके, खाना बनाने वाले, पानी कैरी करने वाले, और हम लोगों के लिए गेस्ट हाउस ओपन कर दिया। रात को हिमालयन ब्लैक बेयर की साइटिंग भी हुई इन लोगों को जिनको ब्लैक बेयर देखना था। मेरा टारगेट दूसरा था। मैंने सुना था कि वहाँ पे स्नो पार्ट्रिज काफी अच्छी साइटिंग होती है हेमकुंड साहिब के रास्ते पे। तो वैसे तो टूरिस्ट को अलाउ नहीं था वहाँ पे, बट एसडीएम से हम स्पेशल परमिशन लेके हेमकुंड साहिब के लिए हमने ट्रैक किया था। उस टाइम पे स्नो में ट्रैक किया था वो भी। सो मैं, शीला और एक जो टूरिस्ट थे हमारे साथ में, और 2 लोगों और थे, हम लोगों ने वो ट्रैक किया। वो डिफिकल्ट ट्रैक्स में से है, 6 किलोमीटर है जस्ट, बट स्टीप है, काफी स्टीप है। मतलब 6 किलोमीटर में आपको 1400 मीटर्स के आसपास क्लाइम करना होता है। तो हम लोग तो ऊपर चले गए, 2-3 लोग नीचे रुक गए घांगरिया में जहाँ बेस कैंप है। उसमें से नितिन को ब्रैम्बलिंग का बहुत अच्छा शॉट मिला था, मेल मिला था उसको ब्रैम्बलिंग, और हम लोगों का मिस हो गया था ऑब्वियसली। और हमें ऊपर जाके स्नो पार्ट्रिज भी नहीं मिला, बट जो व्यू था वहां से वो अमेजिंग था। जो हेमकुंड साहिब में जो लेक है वो हाफ फ्रोजन थी,
पूरा एकदम क्लियर स्काई। ये जो पूरा एरिया है उत्तराखंड में, मुनस्यारी और चोपटा के बीच में आप बोल सकते हैं, ये हाँ कम एक्सप्लोर्ड क्यों है इतना? जो नंदा देवी सैंक्चुरी है, नंदा देवी सैंक्चुरी तो काफी सालों के लिए बंद थी, हाँ और आप ये बोले केदारनाथ बद्रीनाथ का जो एरिया है, हाँ। ये अपर रीचेस इसकी इतनी अनएक्सप्लोर्ड क्यों है? बर्डिंग नहीं, बर्डिंग के लिए अनएक्सप्लोर्ड इसलिए है ना, क्योंकि लोग चार धाम यात्रा के हिसाब से लोग उस एरिया को जानते हैं, और जो वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज भी हैं। मेन तो गाइड का इशू है कि गाइड नहीं मिलते हैं लोगों को उन एरिया में जाने के लिए। नहीं तो मैंने कई बार वो एरिया किया हुआ है, जो गोविंद घाट है या ये पूरा नंदा देवी सेंचुरी का जो पार्ट है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है वैली ऑफ फ्लावर्स भी। बट क्या है कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। जब जो बर्डिंग का मेन टाइम है वहाँ पे समर सीजन, उस टाइम पे एक तो वैली लेट ओपन होती है, फिर बरसात शुरू हो जाती है, और मेरे जो ट्रिप्स होते हैं उस टाइम पे या तो लद्दाख के होते हैं जून में, या फिर मैं भूटान करता हूँ, तो मैं उस एरिया पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए वो एरिया अभी बचा हुआ है लोगों की रीच से। बट ऑब्वियसली जैसे अगर वैली ऑफ फ्लावर्स समर सीजन में जाते हैं तो वेस्ट हिमालयन बुश वॉर्बलर कॉमनेस्ट साइटिंग है, मतलब हर 200 मीटर पे 100 मीटर पे आपको कॉल करते हुए मिलेगा। तो व्हाइट बेलीड रेड स्टार्ट ऐसे ये दोनों स्पीसीज वहाँ पे ब्रीड करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये सब बर्ड मिलती है। चैपफिंच है, जैसे चैपफिंच विंटर्स में ओली में आती है, ब्रैम्बलिंग आती है उस एरिया में। बट वही है कि किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। येलो रम्प हनी गाइड है, वो इजिली मिलता है वहाँ पे। तो ये सब स्पीसीज अभी बची हुई है वहाँ के लोगों से। तो ऋत्विक का एक क्वेश्चन आपके लिए, नीड योर व्यूज एंड पर्सपेक्टिव ऑन बर्डिंग इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। और वेस्टर्न घाट्स में मैंने एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा किया नहीं है। वेस्टर्न घाट्स केरला मैंने खाली किया है, उसमें छत्तीसगढ़ का एरिया किया है, मुन्नार किया है मैंने। और और गोवा। मेरे हिसाब से स्पीसीज कवर करने के लिए बेस्ट वही है, छत्तीसगढ़ एंड मुन्नार वाला जो एरिया है, अगर वेस्टर्न घाट्स की स्पीसीज कवर करनी है। ऋत्विक तो खुद मुंबई में रहते हैं, गोवा कर चुके हैं। गोवा में भी काफी स्पीसीज कॉमन है केरला के और गोवा की। इनफैक्ट तमिलनाडु का एरिया है ऊटी के आसपास का, वो भी काफी रिच है बर्ड लाइफ में। नीरज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर बर्डिंग इन ईगल नेस्ट? ईगल नेस्ट के लिए बेस्ट टाइम मार्च अप्रैल है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसी टाइम पे मैक्सिमम साइटिंग्स होती हैं बर्ड्स की। विंटर टाइम में कुछ स्पीसीज वहाँ पे अच्छी दिखती हैं, बट एक्टिविटी थोड़ा कम होती है। तो बेसिकली जो लोग मैक्सिमम टूर्स वहाँ के करते हैं, वो मार्च का जो सेकंड हाफ है, सेकंड फोर्टनाइट, वो बेस्ट होता है वहाँ के लिए। ग्रेट, थैंक यू राजेश। एक घंटे से ज्यादा, करीब 70 मिनट निकल गए, पता ही नहीं लगा। और अभी तो आपने जो स्लाइड बनाई है, हमने हमने उसको कितना काटा है। आप 2-3 घंटे चल सकती थी प्रेजेंटेशन, और हम सब जो लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से, कम से कम ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। एटलीस्ट मेंटली वी कैन ट्रैवल टू दोज प्लेसेस, इमेजिन ourselves being there sometime very soon, back in the forest, back birding, because being out in the nature is one of the best parts of birding. And thank you everybody for joining us. Thank you Rajesh for taking us through this Thanks journey, everyone. and I hope you are able to cover all the places that you wish to in the next 12 months, and Yeah. see all the rare birds that are still yet to be ticked off from your checklist. Thank you again, and look forward to seeing you sometime soon Thank again. you very Thank much. you. Thanks for joining everybody. Thanks everyone. Bye.